Hello students. So now these are oxides and hydroxides, our next topic of group number 13. Group number 13 elements forms oxides of the formula B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 and Tl2O3. Thallium also forms Tl2O. All these oxides are in +3 oxidation state, and Tl2O have +1 oxidation state of thallium, and they form hydroxides in +3 oxidation state like BOH3, ALOH3, GaOH3. जिसमें फर्स्ट ये है एसिडिक, ये है एम्फोटेरिक, and indium form InOH3 and thallium forms only TlOH in +1 oxidation state. Thallium shows +1 oxidation state as stable one due to inert pair effect, and these are basic hydroxides. Because down the group the basic character increases and acidic character decreases due to increase in metallic character. B2O3 is acidic, BOH3 is also acidic in the form of H3PO3 boric acid, and they reacts with base to form salts NaBO2 and Na3PO3 with H2O. Aluminium oxide and hydroxides acts as acid as well as base, and reacts with base as well as acid. With NaOH base it forms NaOlO2 sodium metaluminate and AlCl3 plus H2O means salt and water. And same way aluminium hydroxide also reacts with base as well as acid and forms sodium metaluminate and AlCl3 with H2O. Gallium also reacts like aluminium. Indium and thallium, which are basic, they reacts with only acids. And the reaction is like InOH3 or TlOH with HCl forms InCl3 and thallium TlCl and H2O. Then comes next one, these are halides. Halides are covalent and they are formed in +3 oxidation state with MX3, and gallium and thallium also forms GaX and TlX in +1 oxidation state. So we have to study the halides of boron, which are BF3, BCl3, BBr3 and Bi3. Now comes the properties of halides of boron. First one is structure. The central atom boron is having sp2 hybridization and shape is trigonal planar. ns2 and p1 is ground state configuration with 1 electron excitation. From s to p it becomes ns1 and np2, where 3 halogen atoms bond and 1 orbital pz is empty. So the halides are having this type of structure. pz जो है empty orbital है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है किसी लेविस बेस से to form coordinate bond. So they act as Lewis acids due to presence of this empty unhybrid pz orbital. Solubility, जो हैलाइड्स हैं बोरॉन के या किसी भी एलिमेंट के कोवलेंट होते हुए भी दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है M3 पॉजिटिव आयन की वो काफ़ी ज़्यादा है. सो MX3 डिसोसिएट्स इन वाटर and shows ionization as M3 positive and 3X negative, and M3 positive reacts with water
For example, B3 positive reacts with H2O and forms BOH4 negative and 4H positive. But M3 positive जो हैं other elements के they forms MH2O6 3 positive compound. नंबर 3 is डाइमेरिक हैलाइड्स. बोरोन को छोड़कर बाकी सभी के हैलाइड्स डाइमर हैं, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं M2X6 and having this structure. For example, Al2Cl6 और X6 एल्यूमिनियम अटैच है 3 हेलोजन से कोवलेंटली. सेम विद दिस एल्यूमिनियम अटैच टू 3 हेलोजन्स. तो यहाँ पर ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल में. तो ये सेल्फ लेविस एसिड और बेस का काम करते हैं. एंड दिस इज ड्यू टू लार्ज साइज एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन. बिकॉज एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है सो इट कैन होल्ड 4 हेलोजन एटम्स अराउंड इट. बट बोरोन ऐसा नहीं कर सकता है. बोरोन हैज स्मॉल साइज so it can't form dimer due to its small size. It can hold only 3 halogen atoms. और इसी की वजह से बोरोन जो है हैलाइड्स में अदर एलिमेंट से या कंपाउंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं एंड एक्ट्स एज लेविस एसिड्स. सो नेक्स्ट इज द लेविस एसिड कैरेक्टर. हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन pz orbital. And this is especially for boron halides like BF3 reacts with NH3 and forms a coordinated compound NH3BF3. SD character जो हैलाइड का है डाउन द ग्रुप विद हेलोजेंस इंक्रीज करता है. मीन्स BF3 सबसे लेस देन BCl3 BBr3 एंड BI3 इज़ द मोस्ट एसिडिक. जिसका रीज़न है कि हेलोजेंस जो हैं एसिडिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज करने का काम करते हैं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग फ्रॉम देयर लोन पेयर. मीन्स लाइक दिस हेलोजन फॉर्म्स बैक बॉन्ड लाइक दिस और इसके अंदर है रेजोनेंस. सो बोरोन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को डिक्रीज करते हैं. और सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग जो है ऑर्डर का वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डिक्रीजिंग ऑर्डर. बिकॉज फ्लोरीन का साइज़ जो है वो स्मॉल है तो इसमें बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है. और आयोडीन में जो है लेस बैक बॉन्डिंग है और इसीलिए ऑर्बिटल जो हैं वो बैक बॉन्डिंग कम करेंगे और अदर्स NH3 या किसी और से लोन पेयर एक्सेप्ट आसानी से करेंगे. सो BI3 में बैक बॉन्डिंग कम होने की वजह से ड्यू टू ऑर्बिटल डिफरेंस इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड. गैलियम, इंडियम और थैलियम के जो हैलाइड्स हैं उनका फार्मूला MX है. वो MX हैलाइड भी फॉर्म करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता ड्यू टू आयनाइड पेयर इफेक्ट. बट TLX जो है इट इज़ मोर स्टेबल देन TLX3 और इसीलिए TLX3 जो है वो ऑक्सीडेंट का काम करेंगे. लाइक TLCl3 को SnCl2 से रिएक्शन कराएं तो इट विल फॉर्म TLCl एंड SnCl4 बिकॉज TLCl मोनोहैलाइड इज मोर स्टेबल देन TLCl3. गैलियम और इंडियम के मोनोहैलाइड्स GX, INX प्रोडक्टेंट का काम करेंगे बिकॉज उनकी स्टेबल स्टेट है +3. फॉर एग्जांपल INCl SnCl4 को दोबारा से SnCl2 में कन्वर्ट कर देगा क्लोरीन लेकर और खुद हो जाएगा INCl3 इन +3. TLI3 की फॉर्मेशन होती नहीं है बिकॉज TL3 पॉजिटिव लेस स्टेबल है आयनाइड पेयर इफेक्ट की वजह से और आयोडीन I नेगेटिव का जो साइज़ है वो काफ़ी लार्जर है. सो दे डू नॉट बॉन्ड्स ईजिली इन +3 स्टेट. सो TL3 पॉजिटिव एक्ट एज oxidant always in oxides and hydrides etc. Then comes the hydrides. एक ही तरह के हाइड्राइड्स हैं इन सभी एलिमेंट्स के जिनका फार्मूला है MH3 और डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइड पेयर इफेक्ट एंड बोरॉन
फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, बोरॉन के हाइड्राइड्स और भी कई फार्मूलों से बनाए जाते हैं, जैसे Bn एंड हाइड्रोजन N+4 एंड Bn हाइड्रोजन N+6 और उनको बोलते हैं बोरेन्स। एल्यूमिनियम फॉर्म करता है AlH3n जो कि एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड है जिसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और बाकी सभी के हाइड्राइड्स लेस स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं। एंड दीज हाइड्राइड्स आल्सो एक्ट एज लेविस एसिड्स लाइक MX3 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। हाइड्राइड्स जो हैं दूसरे हाइड्राइड अल्कली के मेटल के हाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड से AlH3 रिएक्शन करके फॉर्म करता है LiAlH4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सेम वे NaH B2H6 से रिएक्शन करके बनाता है NaBH4, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ कम्स द अनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। ड्यू टू extremely small size and very high ionization enthalpy being the first element and high electronegativity, इन सब की वजह से और एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन सेकेंड शेल की वजह से बोरॉन या कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड पीरियड से जो बिलोंग करता है किसी भी ग्रुप में, लाइक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इन सभी का अनोमलस बिहेवियर हमेशा पाया जाता है, तो इस ग्रुप में है बोरॉन। और वो बिहेवियर है जैसे कि बोरॉन एक नॉन मेटल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, बट बाकी सभी जो हैं मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स जो हैं वो कोवलेंट हैं बोरॉन के, बिकॉज इट डू नॉट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, जबकि बाकी सभी के जो कंपाउंड्स हैं वो लेस कोवलेंट हैं एंड दे आर आयनिक ऑल्सो समटाइम्स। सो बोरॉन इज हैविंग हाईली कोवलेंट नेचर ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 bonds ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। मीन्स बोरॉन जो है जैसे Bf3 विद F नेगेटिव फॉर्म्स Bf4 नेगेटिव जिसमें 4 bonds हैं, बट एल्यूमिनियम AlF3 3 फ्लोरीन से और कंबाइन करके AlF6 बना सकता है जिसमें 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड वो d ऑर्बिटल को यूज़ करके करेगा। सो अदर कैन फॉर्म 6 bonds बट बोरॉन फॉर्म्स ओनली 4 bonds ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। BCl3 वाटर में बनाता है HbOH4 + HCl, बट AlCl3 बनाता है AlH2 6Cl3। तो यहाँ भी एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 विद 6 bonds और बोरॉन का है 4 विद 4 bonds। बोरॉन के हैलाइड्स मोनोमेरिक हैं स्मॉल साइज की वजह से, जबकि बाकी सभी के डाइमेरिक हैं। B2O3 एंड BOH3 जो हैं एसिडिक हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो यू डू नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो अदर्स हैं वो एम्फोटेरिक हैं या बेसिक हैं। बोरॉन जो है बोरेन्स की फॉर्मेशन करता है, बिकॉज बोरॉन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लाइक कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, बट बाकी सभी बोरेन्स जैसे कंपाउंड नहीं बनाते, वो सिंगल फार्मूले का ही हाइड्राइड बना सकते हैं। देन कम सम यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। बोरॉन को यूज़ करते हैं बुलेट प्रूफ्स बनाने के लिए, जैकेट्स के लिए, हीट रेजिस्टेंट ग्लास बोरोसिलिकेट बनाने के लिए जो लैब में यूज़ होते हैं, स्टील के अंदर मिक्स करते हैं एक अच्छा एलॉय बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। बोरॉन की रोड्स को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व करके रिएक्शन को स्लो डाउन और कंट्रोल करने में। एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, रैपर्स ऑफ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम फाइल्स, यूटेंसिल्स। घर में हाउस होल्ड्स में कैन्स बनाते हैं एल्यूमिनियम से, ट्यूब्स बनाई जाती हैं, एयरक्राफ्ट्स बनाते हैं एल्यूमिनियम से हल्का होने की वजह से, एंड ऑल्सो यूज्ड इन मेटलर्जी।
मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने में रिएक्टिविटी की वजह से यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ अदर मेटल्स, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, बट इट हैज़ टॉक्सिक इफेक्ट, सो नाउ इट इज़ वेरी लेस यूज्ड ड्यू टू इट्स टॉक्सिक इफेक्ट. So in this way we have completed our group number 13. Now we will start with group number 14.